Hello everyone, this is Anshika Chhabra from Indore, Madhya Pradesh. We are here today to talk about parenting. Parenting एक बहुत ही important और बहुत ही crucial topic है. So I would be shortly starting my live video. We are here to interact on the tips how to make your child more independent, how to make a child more responsible. So we have 2 minutes and we would be starting up soon. Before that, I request all of you to please make this session an interactive session. मैं चाहती हूँ कि इस सेशन को हम more and more of interactive session बढ़ाएं ताकि हम maximum parents की queries को solve कर सकें. So starting with my session, I will give my introduction again. I'm Anshika Chhabra from Indian Parenting, here to talk about how to make your child more independent and responsible. Let us talk about the first most important point, and the first most important point is do not protect your child every time. अपने बच्चों को हर बार प्रोटेक्ट नहीं करें. प्लीज़ अपने बच्चों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दें कि वो कुछ चीज़ों को गलत कर रहे हैं या उनको कोई और ऐसे मेजर्स, ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे वो अपने काम को और बेटर कर सके. उनकी गलतियों पे पर्दा ना डालें. लेट देम फेस दैट क्रिटिसिज्म, लेट देम फेस देमसेल्फ विद हाई लेवल ऑफ चैलेंजेस. And so this is a way that you can make your child be more sporty. इससे हम हमारे बच्चों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा लवली एंड और ज़्यादा चैलेंजिंग बना सकते हैं. Hi Ritika, I can see your message. Yes, please tell me what would you like to ask. Before we come up with Ritika's question being posted, I have a second point for you. The second point is let your child do work themselves. अपने बच्चों को अपना खुद का काम खुद करने दें. हर बार उनको हर चीज़ उनके हाथों में ना पकड़ाएं. प्लीज़ let them do their own tasks. Let them get a sense of responsibility कि वो अपने काम को खुद कर सकते हैं. Let them be more confident. अगर आप उनको हर चीज़ उनके हाथ में ला कर देंगे, it will not work, my dear friends. You have to make sure कि they have to do things for themselves. अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, हर एक काम की इम्पोर्टेंस सिखाइए. Yes, Ritika, I'm waiting for your question. Hi, I can just see a message from you. Hi everybody, we have already started our live session. I request you कि आप अपने अपने parenting related questions पूछें. आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है अपने बच्चों के साथ, प्लीज़ हमसे पूछें. I would try to put up with the maximum answers to your question. Now, my third point is make him develop tolerance. अपने बच्चे की टॉलरेंस पावर बढ़ाइए. अपने बच्चे को शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होने दीजिए. उसको फेस करना सिखाइए कि आप क्या कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन. Alright, I'm really sorry. I think there is a problem with people saying that I'm not audible to you. Alright, please tell me, am I audible to you now? क्या आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं? Am I audible to you? Yes, please tell me so that I'll continue with my session. क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं अभी? Just give me a yes or no. Okay, I think I have a question from Ritika Garg. Ritika Garg, yeah, as lockdown is going on, can you please tell me how to indulge my baby in activities and how to keep her busy? Ritika, such a lovely question. Can I please know the age of your child? आप अपने बच्चे की age बताइए so that I can suggest you few activities जिसमें आप अपने बच्चे को busy रख सकते हैं. Now, I have one more question and this is from Kiran Mehra. My problem is his speech is not clear, age 4 years. Alright, Kiran, as you have said that the child is not able to speak properly, or maybe what he's trying to speak is not clear for everybody. सब नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को. So I would tell you, बहुत छोटे छोटे सिंपल टिप्स होते हैं. आप अपने बच्चे से ज़्यादा कम्युनिकेट करें, उसकी वॉइस रिकॉर्ड करें और उसको खुद को सुनाएं. विद द हेल्प ऑफ दिस उसको खुद को रियलाइज़ होगा कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है या कर रही है. एंड दिस इज़ हाउ यू कैन
develop a communication skills for them. I have a YouTube channel, My Indian Parenting. इंडियन पेरेंटिंग इज़ अ चैनल जहाँ पे हम बच्चों के वेरियस टॉपिक्स, वेरियस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, उनका सोल्यूशन देते हैं, और इसमें हम काफ़ी वीडियोस इनकी एकेडमिक रिलेटेड भी पोस्ट करते हैं. सो यू कैन गेट इन टच विद मी. After this, I would be mentioning my number. You can get in touch with me and I can help you. Together we can provide a good speech therapy to the child. Yes. So, Ritika, जैसे कि आपने मुझे बताया, your child is 4 years. सो आई थिंक सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी चाहिए अपने बच्चे के साथ वो है कि उसको छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप कराइए. जब बच्चा इंटरेस्ट डेवलप करता है वो हर चीज़ में आगे इनिशिएटिव लेता है. फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा मॉर्निंग में उठता है, आस्क हर टू फोल्ड हर ओन बेड शीट. जब बच्चा मिल्क लेता है, आफ्टर ही इज़ डन विद द मिल्क, जस्ट आस्क हर कि आप अपना कप खुद रख कर आइए. अदर देन दैट, अगेन इंडियन पेरेंटिंग में मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस पोस्ट किए हैं जिसमें आप बच्चे को एक्टिविटीज़ सिखा सकते हैं इनके एकेडमिक्स से रिलेटेड. आप अपने बच्चे को एवरी डे वन चैलेंज थ्रो करिए और उसको उस चैलेंज पे ट्रीट करिए. फॉर एग्जांपल, अगर आज का आपका बच्चा आज मॉर्निंग में 9 बजे उठता है और कल 8:30 बजे उठता है, तो उसको चैलेंज करिए कि डे 3 उसको 8 o'clock ही उठना है. So you have to inculcate small habit in your child, and by this it is possible for you to make her monotonous routine an interesting routine. All right, I have one more question, and again that is from Ritika. And like, she's very short tempered. When I switch off a cartoon, she start creating tantrums. See, Rikita, आप अगर सडनली उसके कार्टून स्विच ऑफ कर दोगे, बच्चा ऐसे ही बिहेव करेगा. अगर आपके हाथ से आपका मोबाइल ले लिया जाए बिना इवन आपको इन्फॉर्म किए, या उस मोमेंट पे ले लिया जाए जब आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देख रहे हैं, तो टेम्पर आपके अंदर भी आएगा. सो आई डोंट थिंक कि बच्चा यहाँ गलत है. ऑल यू नीड टू डू इज़, आपको उसको एक टाइम टेबल में सेट करना होगा जिससे वो खुद ऑटोमेटिकली अपनी टीवी स्विच ऑफ करने लगे, और जब वो स्विच ऑफ करे उसके बाद नेक्स्ट काम जो उसके पास आएगा वो ऐसा कुछ काम होना चाहिए जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो. सो आई रिक्वेस्ट यू, अपने बच्चे का टाइम टेबल बनाइए, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को उन टाइम टेबल्स में फिट इन करिए. सी, बच्चे को ना प्लेग्राउंड में जाने मिल रहा है, ना अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहा है खेलने के लिए, और ना ही वो मॉल्स या कोई मूवी देख सकता है. सो समझिए वो एक छोटा बच्चा है, हमें उसको इंटरेस्ट डेवलप करवाना पड़ेगा. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विद फ्रॉम वाजपेयी जी, एंड इट इज़, बच्चे कोई काम नहीं करना चाहते हैं, कुछ कहो तो जवाब देते हैं और बहस करते हैं. सी, समझिए, हर बच्चा अपने तरीके से रिस्पॉन्स करता है. हमें समझना पड़ेगा कि किस जगह पर जाकर वो आपको ना बोलेगा. आपको बस उसका तरीका बदलना है. आपको हर चीज़ में हाँ बोलना है, पर एक कंडीशन के साथ, और हर चीज़ में ना बोलना है एक रीजंस के साथ. इट इज़ वेरी मच सिंपल. यदि आपको बच्चा बोलता है कि मॉम आई वॉन्ट टू हैव आइसक्रीम टुडे, मुझे आइसक्रीम खाना है, और आप जानते हैं कि आज आइसक्रीम मिलना पॉसिबल नहीं है बिकॉज लॉकडाउन है और बहुत सेफ भी नहीं है ये सब खाना, तो अगर आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि नहीं खाना है, सो दैट इज़ समथिंग रॉन्ग. आपको सिंपल सा आंसर देना है, यस बेटा मैं आपको खिला तो देती, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट लॉकडाउन के कारण आई कैन नॉट गेट इट. सो आपको, आप अगर किसी चीज़ के लिए हाँ बोलते हो तो उसका कंडीशन बताइए, और अगर ना बोलते हैं तो उसका रीज़न दीजिए. यू जस्ट कांट से कि बच्चा ज़िद्दी है. आपको जहाँ जहाँ लगता है, सी, आप अगर उससे कोई चीज़ बोलने जा रहे हैं तो आपको पहले ही पता है कि वो इस चीज़ के लिए मना कर देगा, तो उसके मना करने के बाद आपको क्या ऐसा बोलना है जिससे वो हाँ बोले, ये आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा. सो आई होप मिस्टर वाजपेयी इट इज़ क्लियर टू यू. My next question is, thank you Ritika, I'm so happy कि मैं आपको satisfy कर पाई. Thank you so much for the lovely comment. Now I have a question. My son is very aggressive. He is 5 years old. Sunit ji, I have got this कमेंट फ्रॉम यू, बट सी, बच्चे को आप जनरलाइज बोल दो कि वो अग्रेसिव है, वो नहीं होता है. वो काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस में सॉफ्ट भी होता होगा जहाँ आप खुद सरप्राइज हो जाते होंगे. तो पहले आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो किस चीज़ में
गुस्सा आ जाता है उसको, किस चीज़ पे वो अग्रेसिव हो जाता है, किस चीज़ पे वो पोलाइट रहता है। और वो ऐसे मोमेंट जिस पे वो अग्रेसिव होता है, आपको खुद को उसको डिफाइन करना पड़ेगा और उसको सोल्यूशन देखना पड़ेगा। बच्चे को कभी भी हम डांट के या जिद करके अंडरस्टैंड नहीं करा सकते हैं। फॉर दैट वी हैव टू रियली फाइंड आउट कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है। यदि जैसे कि पीछे मैम ने मुझे बोला था कि कार्टून बंद करते से बच्चा चिढ़ जाता है, लेकिन यही कार्टून बंद करने के बाद हम उसको इमीडिएटली एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दे दें या किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व कर दें जिसमें वो हैप्पी हो जाए, आई एम श्योर वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा या कभी भी इरिटेट या कभी भी चिल्लाएगा नहीं। सो आई थिंक वी नीड टू रियली क्लासीफाई इट कि किस ऐसे पॉइंट पे वो अग्रेसिव होता है, किस ऐसे पॉइंट पे वो फ्रस्ट्रेट होता है। So I have majorly answered all the comments which I have got. If you have any other comments, please keep on posting. Till the time we will take up a next tip. The next tip for making your child more independent is don't take all decisions for your child. आप अपने बच्चे के लिए हर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो एक इंडिविजुअल है। आप अगर हर बार उसके लिए डिसीजंस लेंगे, बिलीव मी वो अपनी चीज़ें आपसे शेयर करना बंद कर देगा। आप अगर उसको हर बार बोलोगे कि तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें इससे नहीं बात करनी है, तुम्हें इस स्कूल में ही पढ़ना है, तुम्हारे साथ ऐसा है, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। लेट देम थिंक। अगर वो गलती करता है तो हमें उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ानी है। अगर वो अच्छा करता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना है। You just can't take all decisions for him. Yes, you can give your suggestions. उसकी बात सुनिए, और अगर आपको लगता है कि वो कहीं गलत जा रहा है तो उसको एक्सेप्टेंस के फॉर्म में समझाइए कि बेटा आपने इस चीज़ के लिए सोचा, विच इज़ गुड, बट आई थिंक अगर आप इसको ऐसा करो तो कैसा रहेगा, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि तुमने जो सोचा है वो गलत है, इसको ऐसा ही करना है। नो, हमें ही चेंज होना पड़ेगा। You don't have to make your child short-tempered by always saying no to him or by always showing directions to him. Okay, so I have next question, and that is, how can you develop interest in writing? My son is intelligent but he doesn't write at all. Hi, can I know the name, can I know the age of the child so that I can tell you how can you make him feel interested more towards writing? Still the time हमें इनकी एज पता चलती है, we would take up a next question, and that is 7 hours sleep is enough for 4-year-old child. All right, see, that is a set standard time that has been given in scientific method, is that a child of 4 years can sleep between 7 to 8 hours, which is sufficient. But please make sure कि उसकी स्लीप आप ऐसे साइंटिफिकली मेजर मत करिए। उसने पूरे दिन में किस तरीके की एक्टिविटीज़ करी है, वो कितना एक्टिव रहा है, उसका दिन कितना फटीक हुआ है, उसके हिसाब से उसकी नींद डिसाइड होती है। कई बार बच्चा 5 घंटे भी सो सकता है, कई बार बच्चा 9 घंटे भी सो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ डे द चाइल्ड हैज़ स्पेंट। सो आई थिंक रितिका, यू प्लीज़ टेक इट इन अ मैनर कि उसकी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करिए, एंड देन you can go ahead with the sleep calculation. Yes, so हमारे पास आंसर, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सॉरी, नम्रता, yes, Namrata has asked me a question that how can I develop interest in writing? My son is intelligent but doesn't write at all. All right, the age of the child is 5 years. See ma'am, क्या होता है जब हम बच्चे का स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं तो कई स्कूल्स में बच्चे को लिखाना शुरू करवा देते हैं, दे आस्क देम टू राइट, बट नोबडी इज फोकसिंग ऑन टू डेवलपिंग एन इंटरेस्ट टूवर्ड्स राइटिंग। तो प्लीज़, अगर वो इंटरेस्ट टूवर्ड्स राइटिंग नहीं डेवलप करेगा तब तक वो लिखना नहीं पसंद करेगा। आप किस तरीके से राइटिंग इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको कलर्स से लिखने दीजिए, उसको अलग अलग टूल्स से लिखने दीजिए। दैट मीन्स उसको चॉक दीजिए, उसको सैंड दीजिए, उसको बोलिए सैंड से ट्रेसिंग करो, उसको बोलिए पेन्स यूज़ करो, उसको बोलिए कैलीग्राफी या अलग अलग फॉन्ट में लिखना शुरू करो, अलग अलग सरफेस में लिखने दीजिए। बिकॉज राइटिंग एक हैबिट नहीं है, राइटिंग इज़ अ स्किल जो कि डेवलप की जा सकती है सिर्फ इंटरेस्ट से, और इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है
उसकी फेवरेट चीज़ों से उसको कनेक्ट करके, जैसे आप उसको अलग अलग पेंसिल्स दीजिए, अलग अलग कलर्स दीजिए, अलग अलग शीट्स दीजिए, इस तरीके से आप धीरे 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 उसके अंदर राइटिंग पे इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। जैसे ही वो अपने फेवरेट रेड या ग्रीन कलर से राइट करेगा और उसको बोलिए कि आपको मेरी डिज़ाइन कॉपी करनी है, ज़रूरी नहीं है कि हम राइटिंग हमारे एकेडमिक से ही स्टार्ट करें, यू कैन गिव अप सम डिज़ाइंस फॉर हिम और हर टू कॉपी, एंड वहाँ वो उस पेंसिल उस पेन पे इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको उसके एकेडमिक्स पे लेकर जाइए. So I hope I have satisfied your question. I have a next question from Mehek. My daughters are 4 and 6 year old. They always get bad dreams at night. They never sleep properly. What should I do? Okay, Mehek, I think you need to really know what kind of dreams are they seeing. Because कई बार क्या होता है, हम पूरे दिन में जो सोचते हैं या हम सोने से इमीडिएटली 2 या 3 घंटे पहले जो भी चीज़ देखते हैं, वो कई बार बच्चे ड्रीम में विजुअलाइज कर लेते हैं. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एट दिस एज विच इज़ लाइक 4 to 6, बच्चों का विजुअलाइजेशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. सो यू रियली नीड टू सी कि वो किस तरीके की ड्रीम्स देख रहे हैं और वो कहाँ तक कनेक्ट कर रहे हैं जो चीज़ वो पूरे दिन में करते हैं. सो लाइक दैट आप एक्चुअली फाइंड आउट कर पाएंगे कि यस, आज मेरे बच्चे ने कार्टून में किसी 2 कार्टून कैरेक्टर्स को एक दूसरे को मारते हुए देखा, और वही चीज़ अगर बच्चे ने अपने ड्रीम में देखी है, सो यू कैन एक्चुअली सी कि आपको वो कार्टून रिस्ट्रिक्ट करने हैं, राइट. यस, सो आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. माई डॉटर इज़ लाइक कन्वर्सेशन प्रॉब्लम. ओके मैम, कॉन्वर्सेशन प्रॉब्लम अगैन इज़ अ स्किल. ये कभी भी किसी को रटाई नहीं जा सकती है. आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उनको मिलवाइए. येस, ऑब्वियसली इट इज़ लॉकडाउन सो यू कैन डू दैट, बट यू कैन ऑलवेज मेक देम कॉन्टैक्ट थ्रू वीडियो कॉल्स विद द रिलेटिव्स. आप अपने रिलेटिव से अपने बच्चे को इंटरेक्ट करवाइए, छोटी छोटी बातों में उसको इन्वॉल्व करिए. आप कोई चीज़ बना रहे हैं, उसको उस चीज़ का डिश शेयर करिए और फिर उसको बोलिए कि यार वो कैसे बनाया था, मैं तो भूल ही गई. आपको उसको डे टू डे रूटीन में उससे बहुत सारी बातें करनी है और नए नए लोगों से बात कराइए. अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कभी कोई ग्रॉसरी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप अपनी डॉटर को पूछिए, उसको बोलिए कि बेटा ये ग्रॉसरी वाले शॉप पे कॉल कर दिया मैंने, आप उन भैया से पूछ लो कि क्या आपके पास बिस्किट्स अवेलेबल है. सो दिस इज़ अगेन अ कॉन्वर्जेशन. इस तरीके के आप एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करिए ना, आई एम श्योर कि उनकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी. एंड यू कैन ऑलवेज सी आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ इंडियन पेरेंटिंग टू फाइंड आउट मोर सच स्मॉल स्मॉल टिप्स. नाउ Mehak के साथ we have one more comment. In the dream also they are fighting with each other regarding small thing. Yes. So मैम ये अगेन कनेक्ट करता है उनके डेली रूटीन में. हो सकता है वो दिन भर किसी टॉय के लिए, किसी फूड आइटम के लिए, कभी टीवी रिमोट के लिए लड़ाई करते हो. सो यू वुड हैव टू फर्स्ट मेक देम अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट सपोज टू फाइट. आपको इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना है. हाफ एन आवर आप देखो, हाफ एन आवर आप देखिए. इस तरीके की आपको उनको समझाना पड़ेगा. यू हैव टू गिव देम एन एक्सप्लेनेशन. एंड इन फैक्ट आपको उनको एक्टिविटीज़ के फॉर्म में भी ये चीज़ें समझानी पड़ेंगी कि somebody who is doing this particular part of homework will only get the TV remote and no fighting for it. And this ways वो ये सोचने, उनकी ड्रीम्स जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी, सेइंग कि मुझे आज ये काम करना है. Okay, now we have a question from Shikha Singh. She is like she is in first standard but she still has a confusion in small b and d. मैम सी small b and d हो गया, ठीक है. ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं लाइक नंबर 6 and 9, these alphabets, these numbers are confusing. You cannot help out. Only thing that you have to do is make them practice more and more. उनको प्रैक्टिस करवाइए. दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, राइट. एंड देन बी एंड डी को आप अपने घर में अलग अलग कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं, जिससे वो बार बार उस चीज़ को देखे और उसके दिमाग में वो शेप बनता चला जाए. ओके शिखा, आई एम सॉरी, आई मीन हर फोर्स इज़ वेरी focus is very low. I'm sorry Shikha, I'm not able to understand आपका question. Can you please elaborate? इसको थोड़ा और बड़े फॉर्म में लिखिए so that I can just see and help you out. Okay.
Now we have one more question. Any moral development skill or any activities for 4-year kids? Yes, definitely, Ritika, there are a lot of activities for a 4-year kids. So for this you will have to contact me and I will let you know various activities that you can do with your daughter as per her interest. For that I would first be interacting with your daughter and it would be really helpful for me to know कि वो किस चीज़ में interest लेती है. My next question from Poonam Agrawal is, how do I help my child 7 years to improve his interpretation of what is said in English? He's a bright child but takes a lot of time to understand. He can read and write but understanding is issue. Yes ma'am, काफ़ी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है. बच्चे ये तो समझ लेते हैं कि वो लिख क्या रहे हैं, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाता है. सो इट्स अ सिंपल ट्रिक जो हम हमारे एकेडमी में फॉलो करते हैं. इट इज़, आप बच्चे से जो भी लिखवा रहे हैं या जो भी पढ़वा रहे हैं, प्लीज़ अगर हो सके तो उसका एक पिक्चर कॉम्पोजिशन पहले बना लीजिए. जैसे ही आप उसका पिक्चर कॉम्पोजिशन बनाते हैं उसके बाद बच्चे को लिखने से पहले बोलिए कि प्लीज़ बेटा आप पहले मुझे ये बताइए कि आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हो और आप इस पिक्चर को देख के क्या समझ पा रहे हो. This ways the interpretation verbally would become more stronger and वो ये समझ पाएगा कि मैं जो लिख रहा हूँ या मैं वो बोल रहा हूँ वो मैं क्या लिख रहा हूँ. So this ways a picture composition activity is really interesting for a child to develop a proper interpretation skills. Now I have one more question from Khushbu, and it is, any moral development skills for any moral development skills and activities for 7 years old boy? Ma'am, there are a lot of activities. Moral development mein you can ask your child to do small household works again. And see, boys must realize that household works are important. It is not that it is a gender based work. सिर्फ girls या women's का ये काम नहीं है. So when I talk about moral development, yes, you can ask your child to get up in the morning, pray in the temple room, जोत जलाएं अगर आपके यहाँ जोत जलाते हैं तो. आज दिन कि आज का मेन्यू आप डिसाइड करिए, जाइए और सबसे पूछिए कि आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या करने जा रहे हैं. आप अपने बेबी को, क्योंकि ये लॉकडाउन है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट एट होम, तो आप इस तरीके से बच्चे को गाइड करिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं. दिस वेज यू कैन डेवलप द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मॉरल स्किल्स, the gripping holding skills, the balancing skills. When I talk about activities, I really need to know कि बच्चा किस चीज़ में interested है. Only then I'll be able to help you out with the activities. So my dear friends, I am sharing my contact number with you all. You can just note it down, give me a call on the same number and we can give a personalized help to you, understanding the need of your requirement of a child. So my mobile number is 6261937573. I'm repeating it, 6261937573. Okay, we have one more question. Ma'am, like she can't sit at one place more than 5 ma'am, like she can't sit in one place more than 5 minutes or focus towards study and stability is in her thought. हाउ कैन डू? मैम सी, इट इज़ वेरी सिंपल. बच्चे की सिटिंग हैबिट डेवलप सिर्फ उसके साथ उन्हीं कामों में की जा सकती है जिसमें वो इंटरेस्टेड हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपका बच्चा कलरिंग में इंटरेस्ट रखता है तो आप उसको 2 कलरिंग शीट दीजिए. 2 कलरिंग शीट के बीच में 20 मिनट्स का गैप दीजिए. पहली वर्कशीट जो है वो 10 से 15 मिनट्स में सॉल्व करनी है, सेकंड वर्कशीट जो है वो 10 से 15 मिनट्स में सॉल्व करनी है. बीच का जो बचा हुआ 20 मिनट्स का टाइम है उसमें आप वो चीज़ इंक्लूड करिए जिसमें वो डिसइंटरेस्टेड रहता है, जिसको वो करना नहीं चाहती है. राइट. सो आप उसको एक कलरिंग शीट दीजिए जो उसको 10 मिनट में कंप्लीट करनी है, सेकंड कलरिंग शीट दीजिए जो उसको 10 से 15 मिनट्स में कंप्लीट करनी है. बीच में आप उसको एक एकेडमिक पोर्शन दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग फोनेटिक साउंड CH. उसको बोलिए कि इस 15 मिनट में आपको CH साउंड के बारे में सोचना है. आप भले ही घूम घूम के सोचो, लेकिन आपको सोचना है, फिर जल्दी से क्विक बैक आना है एंड देन यू हैव टू डू योर कलरिंग शीट. दिस वेज हम बच्चे को लंबे टाइम के लिए एक जगह पे बैठा सकते हैं और बीच में उसको एक छोटा सा नैप भी दे सकते हैं और हम उसको एक स्कूल एक्टिविटी, एकेडमिक एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं. सो आई थिंक आई एम एबल टू हेल्प यू आउट विद ऑल योर क्वेश्चंस.
एंड इट इज़ सच अ लवली थिंग टू सी कि इतने सारे पेरेंट्स कनेक्टेड हैं, इतने सारे लवली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. इट इज़ सच गुड फीलिंग टू हैव दिस. आई एम रिपीटिंग माई नंबर वंस अगेन. 6261937573. 6261937573. 6261937573. I have sent my number with the help of comment also. So you can get in touch with me on the same number in case you need any more help. Yes, getting down to the last step, getting down to the last parenting tip for the day is say yes with a condition, say no with a reason. हमेशा सिर्फ ना बोल देना सही नहीं है और हमेशा हर चीज़ के लिए हाँ बोल देना भी सही नहीं है. सो व्हेन यू आर सेइंग येस फॉर एनीथिंग, प्लीज़ मेक श्योर कि आप बच्चे को बताएं कि आपने ऐसा क्या सही किया है, क्या करेक्ट किया है जिसके कारण आप उसको येस बोल रहे हैं. एंड अगर आप उसको किसी चीज़ के लिए नो बोल रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप उसका रीज़न दें. ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन from Patipal Kaur. My son is 12 and interested in games, and his focus is in concentration is very low in studies, and he gets sweating in hands and feet whenever he has to do some work in hurry. Mom, see, this is very obvious. अगर हमको भी कोई टास्क दिया जाए और हमको रश में वो चीज़ करने के लिए बोली जाए तो हम भी पैनिक हो जाते हैं. And see, if you talk about the sweating and if you talk about the hand getting warmer, so this is a scientific reason. Please make sure that your child is hydrated. He keeps on drinking more and more of water. And please, अगर आपको लगता है कि वो हरी में कोई काम कर रहा है तो उसको पैनिक की सिचुएशन में मत डालिए. Because the moment you put your child into panic position और उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, वो फिर डिस्ट्रेस हो जाएगा, वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना भी बंद कर देगा. तो आप अगर अपने बच्चे को कोई भी काम दे रहे हैं तो उसको उसका कंफर्टेबल टाइम दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए मेरे बच्चे को 1 घंटा लगता है जो कि आधे घंटे में हो जाना चाहिए, तो उसको एकदम से हाफ एन आवर में शट डाउन मत करिए. उसको 1 आवर से 50 मिनट्स पे लाइए, 50 मिनट से 45 मिनट्स पे लाइए एंड देन स्लोली करिए. क्योंकि अगर आप उसको पैनिक कंडीशन में डालेंगे सो इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू डेवलप द इंटरेस्ट. सो आई थिंक आई एम एबल टू हेल्प यू. एंड मैम, जो वार्म बॉडी है एंड जो स्वेटिंग है, दिस हैपन्स विद मेनी किड्स. सो द ओनली सोल्यूशन इज प्लीज़ मेक योर चाइल्ड, कीप योर चाइल्ड हाइड्रेटेड. उसको पानी पिलाते रहिए. ओके, I would be coming again soon, but then you don't have to wait for me to come back. You can anytime contact me. I've already shared my number with you. And Ritika, thank you so much for such a lovely comment. Thank you. I'm really happy कि मैं आप लोगों को अपने views दे पाई, and I'm really happy कि वो views आपको helpful रहे. ओके मैम, आपका कंटिन्यूशन में एक क्वेश्चन है. नो बट ऑलवेज ही स्वेट इन हैंड्स वाइल नर्वस. मैम, बहुत नॉर्मल है, प्लीज़ इस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए. बच्चा स्वेटिंग करेगा, बच्चा स्वेट करता है अगर वो नर्वस होता है. कई लोग नर्वसनेस में शिवर करते हैं. सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आपका बेबी शिवर नहीं कर रहा है, काँप नहीं रहा है, स्वेट कर रहा है. द ओनली सोल्यूशन इज़ प्लीज़ उसको हाइड्रेटेड रखिए और उसको पैनिक कंडीशन में मत आने दीजिए. जैसे मैंने आपको बताया, टाइम, उसकी एक्टिविटी को करने का टाइम स्लोली कम करिए, एकदम से उसको पैनिक कंडीशन में मत डालिए. Now, I have a question, Deepa. How to tell the kid for different between PH and F? Both are the ma'am, this is something related to the academics. I think आप मेरे दिए हुए नंबर पे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए एंड आई वुड रियली हेल्प यू कि आप उनको फोनेटिक्स कैसे सिखा सकते हैं. phonics वगैरह जो है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एंड वी रियली कैन नॉट टेक दिस हियर. अगर जनरलाइज आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताइए. एकेडमिक ओरिएंटेड के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. आई एम रीशेयरिंग माई नंबर. यू कैन get in touch with me on the same number. It is 6261937573. I would really like to tell you कि हम personalized online classes भी लेते हैं अलग अलग skills पे, so you can get in touch with us for more help. Okay. All right. So I think, hi Rashi, I can actually see your hi from here.
Thank you so much. Yes, so I would be now taking up the last three questions. So I request if anybody has any kind of a query, please let me know. Just last three questions, and we will be ending up this session in next 15 minutes. So I really request you, please make it optimum, please make it more interactive. अपने questions post करिए. Okay. मीनवाइल हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं. हम हमारे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स एक बार फिर से बताते हैं. आप अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल कैसे बना सकते हैं. माई फर्स्ट टिप इज लेट देम डू दैट टास्क देम सेल्फ. अपने बच्चे को अपना काम खुद करने दीजिए, उसके लिए हमेशा अवेलेबल मत रहिए. माई सेकेंड पॉइंट इज डोंट प्रोटेक्ट योर चाइल्ड टू मच. अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट मत करिए. आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन बच्चे को प्रोटेक्ट कर कर आप उसका नुकसान कर रहे हैं. आप उसको झूठ बोलना सिखा रहे हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं सिखा रहे हैं, और आप उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं. वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. नाउ माई थर्ड पॉइंट इज मेक हिम डेवलप टॉलरेंस. टॉलरेंस पावर हर बच्चे के अंदर, इनफैक्ट हर ह्यूमन बींग्स के अंदर होनी चाहिए. राइट, हम इंटॉलरेंट नहीं बन सकते. अगर हमारे बच्चे ने कोई गलती करी है तो उसको फेस करने दीजिए. प्लीज़ उसको एक नट शेल, एक कंफर्ट जोन में मत डालिए. अगर उसको अपने मनपसंद की कोई चीज़ नहीं मिल रही है, उसको उस फीलिंग को एक्सेप्ट करने दीजिए, और उस फीलिंग से कैसे बाहर आना है उसके लिए खुद फाइट करने दीजिए. आपको अवेलेबल रहना है, आपको सजेशंस देना है, पर हर बार उसकी उंगली पकड़कर उसको नहीं चलना सिखाना है. Now, my next is don't take all the decisions for them. Do not. You cannot do that. आप उसके हर decisions नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप उसके decisions लेंगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो अपनी चीज़ें आपसे शेयर करना बंद कर देगा. The reason is, for example, अगर आपके बच्चे ने क्लास बंक करी है और उसने आके आपको बताया, और आपने क्या बोला उसको, ये गलत है, ये क्या करके आए हो तुम, that's wrong, you should not do that. वो आपको अगली बार कुछ भी नहीं बताने वाला है. इंस्टेड उसको पूछिए कि अच्छा क्लास बंक करी क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई डिड यू डू दैट. मतलब यू शुड हैव नॉट डन इट ना, आपकी क्लास थी, आप पढ़ते तो शायद आप मिस नहीं करते. डोंट बी ऑफेंसिव. और अगर उसने वो क्लास मिस करी भी है, हो सकता है उसके फ्रेंड्स ग्रुप ने करी हो सकता है वो फर्स्ट टाइम स्मोक इसलिए करके आया हो क्योंकि उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं और उसके पास एक पीयर प्रेशर था कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं रह सकता. आप उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश करिए और उसको उस सिचुएशन का डिसीजन लेने दीजिए. और यदि वो डिसीजन उसने गलत लिया है तो उसको प्यार से जस्टिफाइड वे में उसको सॉल्यूशन दीजिए, ना कि डायरेक्टली अग्रेसिव होकर उसको येस और नो बोल दें. बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना खुद का लॉस कर रहे हैं. एंड द लास्ट थिंग इज से येस विद अ कंडीशन, से नो विद अ रीज़न. आपने जिस भी चीज़ के लिए येस बोला है उसको बताइए कि आपने क्या अच्छा काम किया है तो आपको येस मिला है. और अगर आप किसी चीज़ के लिए नो बोल रहे हो तो सिर्फ इसलिए नो नहीं बोल सकते क्योंकि आप उसके पेरेंट्स हैं. वो एक इंडिविजुअल है, आपको उसको समझाना पड़ेगा कि आपने उसको नो क्यों बोला है. सो द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज से येस विद अ कंडीशन and say no with a reason. Okay, so I'm done with all my 5 points and I have got 2 more questions, and the question is from Rashi. Yes, my child is getting disinterested in studies. What to do? Ma'am, you will have to first find out कि वो disinterested क्यों हो रहा है. क्या उसको कोई concept समझ में नहीं आ रहा और उसके डर के कारण वो चीज़ करना ही नहीं चाह रहा क्योंकि उसने एक नोशन बना लिया है कि मुझसे तो बनता ही नहीं है. क्या ये रीज़न है कि वो डिसइंटरेस्टेड है या कोई और रीज़न है? आपको लिटरली वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओनली देन विल यू बी एबल टू हेल्प हिम हाउ टू क्रिएट एन इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं मुझे मैथ्स नहीं अच्छा लगता, मुझे मैथ्स आता ही नहीं है. राइट? क्यों बोलते हैं? सारे बच्चे उसी क्लास में मैथ्स पढ़ते हैं और कुछ को पसंद है कुछ को नहीं पसंद है. उसका रीज़न ये नहीं है कि उसको पसंद नहीं है, उसका रीज़न ये है क्योंकि उसको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया. और जब उसको नंबर 1 ही नहीं पता है तो वो नंबर 11 बढ़ते हुए कॉन्सेप्ट्स पे कभी भी नहीं जा पाएगा. तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिए कि वो क्यों डिसइंटरेस्टेड है. यू विल हैव टू फाइंड आउट अ रीज़न फॉर इट. Alright, so my second last question for the day is from Mrs. Kaur, and it is please reply to the another question regarding he's too much addicted to games. Alright, he's too much addicted to games, that's not a problem. आप उसके गेम्स में उसकी स्टडीज़ इन्वॉल्व कर दीजिए. इफ़ सपोज योर चाइल्ड इज़ 5 years old एंड देन वो
मोबाइल्स पे गेम करता है, खेलता है, तो मोबाइल पे गेम आप उसको हाफ एन आवर खेलने दीजिए एंड धीरे से उसी गेम को ऑन पेपर कर दीजिए. फॉर एग्जांपल बच्चे अगर कार्ड्स खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, सो आई थिंक लूडो हमारे पास फिजिकली भी अवेलेबल है. आपको अपने बच्चे को सबसे पहले तो मोबाइल से दूर लेकर जाना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज़ कि आपको उसको एक सेट टाइम टेबल में डालना पड़ेगा कि ये टाइम तुम्हारे स्टडीज़ का है और ये टाइम तुम्हारे गेम्स का है. आपको स्ट्रिक्टनेस दिखानी है लेकिन सॉफ्टनेस के साथ. हमें बच्चे को समझाना है बट चिल्ला कर नहीं. ऑलराइट, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा बेटा मुझसे डरता है क्योंकि मैं उसे डांट देती हूँ अगर वो नहीं पढ़ता. ये रात को टाइम से नहीं सोता और मॉर्निंग में स्कूल होता है. ऑलराइट मैम, आई थिंक क्वारंटाइन है तो वो भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है. स्कूल नहीं है, उसको भी पता है. और मैम सी देखिए, बच्चे की बेसिक नीड है 7 से 8 घंटे की स्लीप की, तो ऑब्वियसली अगर वो रात को सोएगा तो नहीं सोएगा टाइम से, तो वो आपको मॉर्निंग में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा. तो अगेन इसका सोल्यूशन यही है कि आप उसका एक सेट टाइम टेबल बनाइए और फिजिकली उसको थोड़ा एक्टिव करिए. 1-2 घंटे आप उसको एक्टिवली इन्वॉल्व करिए एंड देन उसके बाद जब वो थक जाएगा तो वो डेफिनेटली नाइट में सोएगा. उसको बेड टाइम स्टोरीज सुनाइए, दिस विल हेल्प हिम. और दूसरी चीज़ जो आपने कही थी कि मेरा बेटा मुझसे डरता है क्योंकि मैं उसे डांट देती हूँ, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली वो यही करने वाला है. अगर आप उसको डांटेंगे तो वो आपसे या तो चिढ़ जाएगा या तो आपसे डरने लगेगा. तो डांटना इज़ नॉट अ सोल्यूशन. बी अ फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, मेंटेनिंग योर ओन डेजिग्नेशन. आपको उसका फ्रेंड बनना पड़ेगा. हो सकता है वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो अगर आप उसमें खुद इन्वॉल्व हो जाए और उसके बाद उसकी स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो जाए तो वो डर ख़त्म हो जाएगा. प्यार से हैंडल करिए बच्चे को. बच्चा अगर आपको ही कोई पर्सन डांट दे या आपके अगेंस्ट आपकी बात बोले तो आप दो ही चीज़ करोगे, या तो आप उससे चिढ़ जाओगे या तो आप उससे डर जाओगे. तो वो तो फिर भी बच्चा है. Okay, Pratipal Kaur has answered me. No, he is 12 and addicted to PUBG. Ma'am, this is a big time problem. I think if the game is PUBG, you really need to be strict here. Because PUBG एक बहुत ही addictive game है. I think the first thing that you need to do is uninstall the game. अगर वो 2 दिन रोता है, 3 दिन रोता है, 4 दिन गुस्सा करता है, करने दीजिए. टॉलरेंस बढ़वाइए बच्चे की. You can't let him play PUBG right away because quarantine is not a period to enjoy PUBG. It's a time हम अपनी weaknesses को strength में convert करें. ये time है बच्चे उन छूटी हुई चीज़ों को डेवलप करें जो स्कूल के रेगुलर रूटीन, ट्यूशन्स के रेगुलर रूटीन के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं. सो मैम, मेरा आपसे ये सजेशन है, अनइंस्टॉल करिए. 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रोता है, चिढ़ता है, गुस्सा करता है, करने दीजिए. Nothing will happen. Yes, but make sure कि you keep an eye कि बच्चा कुछ गलत ना करे. So by that, I think we really had an interactive session and I just loved it. So my dear lovely parents, thank you so much for putting up so many questions and I hope मैंने बहुत ही patience and happily आप सभी के questions का answer दिया हो. Now, I would like to tell you कि I've already shared my number. You can get in touch with me on the number given. आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट करिए. वी हैव पर्सनल काउंसलिंग, वी हैव पर्सनल सेशंस फॉर द स्टूडेंट्स. वी वुड डेफिनेटली कम अप विद गुड सॉल्यूशंस फॉर यू. दूसरी चीज़, यूट्यूब पे हमने अभी लेटेस्ट एक चैनल बनाया है, इंडियन पेरेंटिंग, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं बच्चों की टिप्स पे, बच्चों के बिहेवियर स्किल्स पे. तो आप उसको भी डाउनलोड करें, उसको भी सब्सक्राइब, लाइक करें, सो दैट आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें. So thank you so much, Indian Working Woman. Thank you so much for giving this opportunity to me. It was really loving interacting with all of you. So see you soon and love you all. Thank you so much.